Let's dare to encounter our inner fear. Let's invite them for a talk. Let's make our fears our strength. We have one such power woman with us in our show today, Hemlata Jangir. She is the pride of our nation, an international powerlifting champion who has won silver medal in Commonwealth held at Canada and fourth place in Asian Championship Turkey. She is a mother, a sports person, and a successful fitness coach. She is also an ex NCC cadet who had presented the Guard of Honor to then Vice President of India and other dignitaries in the Republic Day. We are so grateful to have you with us, Hemlata. Thank you so much for accepting Thank you, ma'am. our Thank you. request to come Thank here. you so much. Thank you so much, ma'am. So thank you so much. We are so glad to have Thank you you, with Malshri. Thank you. us. So सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपकी जो जर्नी अभी तक की रही है, so please tell us about your journey of being a housewife, और फिर उसके बाद आप मदर भी हो, and then you have become an international champion. तो वो क्या रही आपकी जर्नी, आपके experiences? I start my journey from childhood also. So when I was in fourth class, I participate in very small level school games, and I run there in national level 12th class. After that, I came in my college admission, inter college universities. 3 times I was winner team in handball team. So after college, as a sports person, also part of in NCC cadet, and after that I'll start a job also. So there's a very long journey as a sports person, and I left to my job after that my child. So I have a son, uska take care karna tha, and I was enjoyed my motherhood period also. So I left everything and I lost totally. So after that that second inning was very difficult to me come back, और इतना ज्यादा बहुत टाइम बीत गया था मेरे स्पोर्ट्स जर्नी को, और जो मैं थी प्रीवियसली आई कुड नॉट फाउंड माई सेल्फ अगेन इन सेम वे कि एज ए स्पोर्ट्स पर्सन मैं कैसे अपने आप को कम बैक करूं. सो आई थिंक लॉट, आई सर्च थिंग्स, और बहुत छोटे बच्चे के साथ यू कैन यू कैन नॉट बी इमेजिन योर सेल्फ यू आर गोइंग आउट फॉर लॉन्ग टाइम. सो एज ए स्पोर्ट्स पर्सन कहीं ना कहीं जीन्स में था, कहीं ना कहीं मन में चल रहा था कि मुझे कम बैक वापस करना है, बट किस फील्ड में करना है. आई वॉज वेरी confused. I support to my family is a financial also, and I left my job when Priya, my son, was born. तो मेरे लिए बहुत सारी चैलेंजिंग लाइफ रही स्पोर्ट्स एज ए स्पोर्ट्स पर्सन. और स्टार्ट मुझे जब करना था तो माय सन वाज इन ओनली 2.5 years. 2.5 साल के बच्चे को छोड़ के आप ग्राउंड में जाना इज रियली वेरी डिफिकल्ट. सो आई डिसाइडेड वन डे कि फर्स्ट आई विल डू माय ऑल फिटनेस कोर्सेज. एज ए फिटनेस कोच आई शुड बी टीच फर्स्ट माई सेल्फ. मुझे पहले उसमें सब में सर्टिफिकेशन करना होगा, देन आई विल टीच टू अदर persons. So I decided there, and I get all certificates first in 2018. After that, I suddenly I got a job in a gym. So I decided to went to gym as a personal trainer. I give a lot of people to give a personal training. Parallelly, it is still running in my mind. I was a sports person. I am a coach perfectly fine, but I want to play again. But मैं come back कैसे करूँ in this age after my baby? So I searching the lot of games where I go easily, and कैसे हो सकता है and all these things. So one day that one girl, she is also mother and international player also. So she was practicing there, and I asked a question, you are starting here when she's after marriage, after baby. So still just set my mind कि yes, I will also do the same part. So I start my journey again state level, and national level पे मैंने बहुत साल पहले national level पे गेम छोड़ा और start my journey again in very ground level कि मुझे सीखना है, बहुत बेसिक सीखना है, उसके बाद मुझे स्टेट क्लियर करना है. So after 3 or 4 months very hard
ट्रेनिंग के बाद आई गॉट सेलेक्टेड इन स्टेट लेवल पावर लिफ्टिंग इन दिल्ली. So I got medal there. I was, जब आप थोड़ा थोड़ा पैरेलली ऊपर जाना स्टार्ट करते हो और आपके ड्रीम्स थोड़े थोड़े से कन्वर्ट होने शुरू होते हैं, तो यू विल बी वेरी लाइक यू फील वेरी मोटिवेटेड योरसेल्फ. तो then I decided, no, I will fight in national also. So I'll searching there कि how can I go there, कितने competitions होते हैं, किस level पे होते हैं, कैसे मुझे अपनी journey start करनी है, और क्या training करनी है. So national level training was very 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 hard and very difficult, because if I'm talking about the powerlifting, is a totally male dominating game, and उसमें फीमेल का कम बैक करना और बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज पावर लिफ्टिंग इज ए टोटली स्ट्रेंथ एंड वेट लिफ्टिंग गेम. सो आपको उस हिसाब से अपना डाइट, आपका लाइफस्टाइल, आपको घर को मेंटेन करना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था. बट जब हम किसी चीज को सोच लेते हैं या अपना कोई लक्ष्य बना लेते हैं, तो उसको इजी करना भी एक इजी वे ही हो जाता है. अगर आप सोच लो कि मुझे ये करना है, उसको किस इजी वे में आप लेके जाते हो. So my family was also supporting me, and I was started okay करना है. Then I was in 2019 January, मुझे national में participate करने का chance मिला in Pune. I got a 4th place there, and I was parallelly I was preparation in my mind for international. My aim was international, not a state and national level, but I have to clear all state first. So I cleared all stage. नेशनल में भी मेडल लगा, सेकंड नेशनल में, और उसके बाद में इंटरनेशनल के लिए जब मेरा सिलेक्शन हुआ, तो आई वाज सो हैप्पी इनसाइड, बट वरीड अबाउट माय ट्रेनिंग, माय डाइट, माय चाइल्ड, माय फैमिली. And being a female, there's a lot of responsibility on your head, because बच्चे का स्कूल भी देखना है, और द स्पोर्ट्स वाज नॉट ए लाइक शॉर्ट टर्म में आप बहुत कुछ करके बहुत कुछ लेवल पे चले जाओगे. इट वाज द जर्नी अबाउट 3 to 4 years continuously. Then I reached this level. I have was selected in a powerlifting for Canada, and I go there and win the medal. So I was so happy. This is my actual journey, like very small to like this level. That's so inspiring to hear from you. We all are motivated, like we can start at any age. और जैसे आपने कहा कि बहुत सारी मुश्किलें आई, तो आपने उन मुश्किलों का किस तरीके से सामना किया और उनसे कैसे आप ओवरकम किए? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम था, एक बच्चा भी था, तो क्या इंस्पिरेशन थी आपकी? इंस्पिरेशन इज कि माय फर्स्ट थिंग इज आई डिसाइडेड माय गोल कि मुझे इंटरनेशनल जाना ही है. अगर मैं स्टेट लेवल पे मेहनत करूंगी, मुझे अगर स्टेट खेलना है, स्टेट में मेडल लगाना है, तो मुझे नेशनल लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, और नेशनल लेवल की तैयारी अगर मैं करती हूँ, तो मुझे स्टेट में मेडल आएगा. इट इज माय फर्स्ट स्टेप. आफ्टर इंटरनेशनल के लिए आई वाज प्रिपेयर कि मैं अगर इंटरनेशनल की तैयारी करूंगी फॉर नेशनल मेडल्स, तो मुझे डेफिनेटली नेशनल्स में मेडल लगेंगे. सो इट्स अ वेरी स्टेप बाय स्टेप इज माय स्पोर्ट्स जर्नी. पैरेलली माय चाइल्ड, कि मुझे इसको कितना टाइम देना है, स्टडी ऑल्सो, इज फूड ऑल्सो, इज क्रिस टाइम ऑल्सो, बस से पिकअप ड्रॉप करना एंड एवरीथिंग. सो आई बैलेंस. अर्ली मॉर्निंग आई वॉक अप देयर, अर्ली मॉर्निंग में जिम में जाना, अपना वर्कआउट करना, बाकी के लोगों को ट्रेन करना, बच्चे के स्कूल से वापस कम बैक करना, उसका टेक केयर करना, उसको स्कूल ट्यूशंस भेजना, उसका फूड देखना, एंड आफ्टर इवनिंग अगेन सेम 2 hours फॉर मी, कि मुझे अपना बाकी का वर्कआउट कैसे करना है, मेरे को अपना जो पर्सनल वर्कआउट है वो कैसे करना है दिस लेवल पे जाने के लिए. सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बैलेंस माय हाउसवाइफ, एज ए हाउसवाइफ, एज ए वर्किंग वुमन, and as a sports person. So I divided very simply way to me, okay, this time I will work for me, and this time I work for my home, and this time I give for my child. So just make a simple graph for me कि 4 घंटा मुझे अपनी ट्रेनिंग करनी है, मुझे अपनी डाइट लेनी है, उस पर भी ध्यान देना है, बच्चे की डाइट और उसके स्कूल पे भी ध्यान देना है, एंड फैमिली पे भी ध्यान देना है. सो आई कन्वर्ट दिस वे टू लाइक इसको ग्राफ बना के आई विल मैनेज माई सेल्फ, but it's a really very difficult to manage everything.
बट आपने उसको बहुत ही मतलब जैसे आपने बताया है, ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ही सिंपली उसको मैनेज कर लिया, बट आई एम श्योर जब आपने किया होगा इट मस्ट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। बट Yes. यही खासियत है कि खुद पे बिलीव रखना है, और अगर कुछ करना है तो फिर हमें चीजें बैलेंस करनी पड़ती हैं। अच्छा, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने बोला कि विमेन के लिए थोड़ा चैलेंजिंग है स्पेशली स्पोर्ट्स फील्ड में, तो अभी हमारी कंट्री में स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज को लेके क्या स्टेटस है, और क्या स्कोप है उन मतलब उन लड़कियों के लिए या फिर फीमेल्स के लिए जो स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट हैं और स्पोर्ट्स में अपना करियर आगे बनाना चाहती हैं, तो क्या स्कोप है हमारी कंट्री में? क्या मतलब इनफ रिसोर्सेज हैं स्पोर्ट्स को लेके, या फिर इंडिविजुअल एफर्ट ज्यादा है, कोई सपोर्ट सिस्टम है प्रॉपर या नहीं? नहीं, बिल्कुल है, सपोर्ट सिस्टम भी है, बट ग्राउंड लेवल पे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइक कि आपको स्टार्टिंग तो यू हैव टू स्टार्ट योरसेल्फ ओनली। जब हम घर से पैर नहीं रखते तो आपको ही रखना होगा, आपको चूज करना होगा कि मुझे किस फील्ड में जाना है और मैं किस फील्ड के लिए बनी हूँ। दैट यू हैव टू डिसाइडेड फर्स्ट। आफ्टर गो टू आउट योर होम देन यू डिसाइडेड ऑन योर हार्ड वर्क कि आप किस फील्ड में जाके किस पर्टिकुलर गेम को चुनते हैं और किस पर्टिकुलर गेम के में आप कितना किस लेवल पे तक खेल पाते हैं, कितना हार्ड वर्क आप उस पर कर पाते हैं। Opportunity, if I'm saying in powerlifting, there is open for railways that paramilitary also open for sports in powerlifting. Para powerlifting is open including in Olympic games, but powerlifting body isn't for international body only. So for this, if I'm talking about कि अगर हम early age में if I'm going for if I was in 17 और मैंने start किया कि मुझे power lifting करना है, तो people are playing in a sub junior level. सब जूनियर में खेलेंगे, जूनियर में खेलेंगे, then they come in a senior level under 25. तब तक there's a lot of lot of opportunity in governments. आप बहुत सारे कोटाज हैं हमारे इंडियन गवर्नमेंट में स्पोर्ट्स के, जिसमें आप जा सकते हो। आप जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वहां के सपोर्ट से जा सकते हो, आप परफॉर्म करोगे, डेफिनेटली लॉट ऑफ सोर्स फॉर यू। बट हाँ, यस, ग्राउंड लेवल पे यू हैव टू परफॉर्म योरसेल्फ हार्ड वर्क। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम गोइंग फॉर द गीता, बबीता, मेरी कॉम, लॉट ऑफ फीमेल्स, मोटिवेटिंग फीमेल है जो ग्राउंड लेवल पे उन्होंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क और मेहनत अपना डेडिकेशन के साथ उस लेवल पे पहुंची। देन इंडिया, if I'm not saying कि इंडिया, पूरा वर्ल्ड उनको सपोर्ट करता है, लॉट ऑफ पीपल सपोर्टिंग। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पॉन्सर एंड ऑल की जो एक बेसिक और मिडिल क्लास फैमिली से कोई फीमेल बिलोंग करे और उसको लगे कि मुझे इस लेवल पे खेलना है जाके, यस, तो इफ आई एम सेइंग कि अगर आप हार्ड वर्क करते हैं और आप अपने गोल को, अचीवमेंट्स अपने ऊपर बिलीव रखते हैं, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप में गेम को लेकर डिसिप्लिन है, तो आप डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं से वो रिसोर्सेज जरूर मिलेंगे, चाहे आपको गवर्नमेंट से मिले या किसी प्राइवेट पार्टी से मिले या किसी प्राइवेट कंपनी से मिले, बट डेफिनेटली आप एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपको रिसोर्सेज डेफिनेटली मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। हमारे दिल में अगर सपना है और उसके प्रति हमारा डिसिप्लिन है, यस पहले हमें करके दिखाना है और फिर बाद में सब लोग सहायता के लिए आते ही हैं। जी। So, what is your advice for those women who restrict themselves from following their passion after marriage or motherhood? The first thing again I'm saying कि first start from your mind. So after marriage, most ofly female feels कि no, this is the ending. I'm getting married, I have 2 or 1 children, so now finishing and this is my job. I'm just carrying my child, take care of my home responsibility and all these things, some financial support also from work or outside, but they don't pursue your passions जो आप लोगों ने पहले सपने देखे हैं, वो आप कैसे उसको पूरा कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टार्ट योर सेल्फ ओनली, क्योंकि मुझे तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मंत्रा है कि आई विल स्टार्ट फ्रॉम माई सेल्फ ओनली। मुझे मेरे पे बिलीव रखना है, आई विल डू एवरीथिंग। इफ आई एम सेइंग लाइक दिस, एवरी वुमन शुड बी लाइक दिस, कि मुझे मेरे पे बिलीव रखना है इन एनी फील्ड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स, किसी भी एक स्पोर्ट्स में नहीं, जिसमें भी आपका पेशेंस है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ। पहले आप अपने से स्टार्ट करो, देन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप आगे के सोर्सेस आपको मिलते जाएंगे, डेफिनेटली यू विल बी ग्रो। और फीमेल में तो इतनी शक्ति है,
she have not 2 hands, she have lot of hands, lot of resources, बट हाँ ये है कि आपको अपने ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा। और आफ्टर सेकेंड इनिंग अगर आपने करनी है तो आपको स्टार्ट किसी ना किसी एक पर्टिकुलर जगह से करना पड़ेगा, और दैट पर्टिकुलर प्लेस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट प्लेस फॉर एवरी वुमेन। कहीं ना कहीं से, आई एम नॉट सेइंग फाइनेंशियली, आई एम नॉट सेइंग पेरेंट्स सपोर्टिंग फीमेल हस्बैंड चाइल्ड, यस फ्रॉम योर सेल्फ ऑल्सो, कि हमें उस डिफिकल्ट से बाहर निकाल के एक बार आपको कहीं जाके स्टैंड करना पड़ेगा, एंड यू डेफिनेटली विन दिस प्लेस वेर एवर यू वॉन्ट टू गो, यू फॉलो योर पेशेंस, जो भी आप कुछ करना चाहते हो। सो एक बार कहीं ना कहीं से आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा। हाँ जी, आपने बहुत ही सही बात बोली है। लाइक वी शुड स्टार्ट विद आवरसेल्व्स। और कई बार ऐसा होता है कि हम खुद ही अपने रिस्ट्रिक्शंस बना लेते हैं, हमारे माइंड में वो इतने यस। रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, वी जस्ट हम्म स्टॉप आवरसेल्व्स फ्रॉम फॉलोइंग आवर पैशन। हम्म सोसाइटल प्रेशर और रिस्ट्रिक्शंस तो रहते हैं, बट जो दिमाग if से I am पहले saying, yeah, if I am saying a very small thing, sorry to interrupt you, but my son is now 8 years old, and if I am going and out of Delhi for my sports, so I really not understand कि मैं उसको कहाँ drop करूँ, अपने साथ लेके जाऊँ या क्या करूँ. So I decided take a permission from school simply and ask them कि now online classes is running. I just given an example for last 2 months. So I start प्रियांश को लिया, मैं मेरे सन को लिया, and I go there. Very difficult to manage my practice and my son's online class in same place. I am lifting here, my son is taking online class here. So this is a really very difficult. All the competition, my son's with me. If you are saying कि नहीं, how can I go because my son is very small, किसी का भी, और फैमिली अलाउ नहीं करेगी या ऐसा नहीं करेगी या वैसा नहीं करेगा, यू हैव टू एक्सप्लेन योर सेल्फ की व्हाट आई वांट टू डू। अगर आप ऐसा अपने फैमिली को एक्सप्लेन करते हो और आप बहुत डेडिकेटली और डिसिप्लिन के साथ अगर उसको फॉलो करते हो, किसी भी पेशेंट को डेफिनेटली यू विल बी विन। ये आपने बहुत ही मतलब क्या बोलना चाहिए, बहुत ही सुंदर बात बोली है कि सही में हमें खुद को पहले वो मतलब ना खुद में उतना बिलीव रखना पड़ेगा, तभी हम सामने वाले को, अपने पेरेंट्स को, सोसाइटी को वो चीज़ बोल सकते हैं कि अगर हम डेडिकेटेड हैं, डिसिप्लिन्ड हैं पैशन को लेके, देन वी कैन डेफिनिटली गो फॉर इट। कोई भी चैलेंजेस या कोई भी ऑब्स्टेकल फिर मायने नहीं रखता। राइट। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जनरली मतलब जो है कि लड़कियों के लिए पावर लिफ्टिंग इज अ इट्स लाइक अ स्टिग्मा इन द सोसाइटी कि विमेन कैन नॉट डू पावर लिफ्टिंग, दे शुडंट डू, क्योंकि वो बॉडी को हार्म करता है, और एंड देयर आर अदर स्टिग्मास एंड टैबूज लाइक दैट। तो एक तो आप प्लीज पावर लिफ्टिंग के बारे में बताइए कि वो क्या है एंड हाउ गुड और बैड इट इज फॉर अ वुमन। क्या वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करता है या नहीं करता है? तो बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई से कि अगर मैं किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए जा रही हूँ, तो सबसे पहले तो मुझे यही माइंड से निकालना होगा कि उसमें कोई मुझे किसी तरह की कोई हानि नहीं है, मुझे कोई लॉस नहीं है। इफ आई एम सेइंग लाइक दिस, पावर लिफ्टिंग इज अ टोटली मेन डोमिनेटेड गेम। आदमी लोग जो है दे मोर पावर, दे फील कि आई एम मोर पावर टू यू फीमेल्स, की फीमेल्स से ज्यादा दे आर पावरफुल, दे फील। बट इफ आई एम सेइंग कि अगर किसी फीमेल को पैरेलली सेम मैन की तरह ट्रेंड किया जाए, तो वो उससे ज्यादा ही कहीं ना कहीं पावरफुल होएगी, उससे कम कभी नहीं होएगी। सो वीमेन सोचती है कि इफ आई एम गोइंग इन अ जिम तो मेरी आदमियों की जैसी बॉडी हो जाएगी। दिस इज अ वेरी सिंपल वे आई एम सेइंग कि जिम का मतलब दे फील कि मुझे एक मेंस की जैसे मैं दिखने लगूंगी और मेरी बॉडी जो है वो मस्कुलर हो जाएगी, मुझे मेंस की जैसा दिखना पड़ेगा। It's totally wrong. If you are going in a gym, if you are spending a lot of time on your body, you are stress free first from your home, from your office, from your personal life or your professional life also, if you are choosing the fitness this journey. Second thing, if I'm saying कि powerlifting is a women's अभी बहुत ज्यादा grow कर रही है powerlifting में, because in every field, if I'm saying कि every field में females आगे ही निकल रही है, पीछे किसी भी मेल से नहीं है। तो same as like a powerlifting. Powerlifting में there is a totally 3 games: strength, that squat, bench and deadlift, and that also that 3 events is totally for a strength and power games. It's energy and all these things including, but totally main thing is strength and power.
एंड फीमेल फील, इफ आई एम सेइंग कि फीमेल अगर कोई फील करेगी कि मेरे अंदर वो पावर ही नहीं है कि मैं वो जाके करूं, और व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग द कंपटीशन देयर, आप जब एक प्लेटफॉर्म पे जाके खड़े होते हैं और यू कैन सी अराउंड टोटली मेन देयर, तो आपको लगता है कि इतना वेट एक जो आदमी उठा सकता है, क्या मैं वो वेट उठा सकती हूँ क्या नहीं. इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट और yourself only, you cannot be lift the weight. So simple mantra in when you went to a gym, when you go for any games, when you go in a powerlifting, किसी भी गेम्स में या किसी भी कोई भी फीमेल किसी भी फिटनेस इंडस्ट्री की तरफ जाती है और वो ये सोचती है कि नहीं, या हमारी सोसाइटी सोचती है कि नहीं फीमेल कैन नॉट बी डू, ये मेंस का गेम है, तो ये टोटली रॉन्ग है. इफ आई एम सेइंग इन फिटनेस, जिम में है बहुत हमारी सोसाइटी जिम को एक्सेप्ट नहीं करती है, एंड दिस इज कि आप जिम में जाओगे, मेल्स के साथ में वर्कआउट करोगे तो मेल्स के जैसा आप दिखोगे, आप मेल की जैसी आपकी मस्कुलर बॉडी हो जाएगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. यू आर इन्वेस्टिंग योर दैट ब्यूटीफुल टाइम ऑन योर बॉडी, नॉट योर अदर. आप जो आप अपने फिटनेस पे जो इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो. इट्स इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम. आप lot of benefits if you are going in a gym, lot of benefits, lot of disease free you feel if you are going long time gym, you are running. So that fitness journey, if I am saying कि अगर आप accept करते हो, adapt करते हो अपने body के, तो आपको benefit ही होगा, उससे कोई loss नहीं होगा. And if I am saying the society simple way, start from yourself, end from yourself only. Don't look here and there, just make a simple goal and go and go. Thank you so much. Or as a fitness coach, what would you like to tell women on maintaining their health and fitness? So first of all, I'll say a lot of clients as a fitness journey, I was started in very early 2017 after my baby. If I'm saying about talking about me, I gained a lot of weight, and I was feeling कि I was a sports person when I'm going, and that postpartum weight also I am feeling, and lot of things, lot of disease. When a female sitting after pregnancy, they feel कि I am a totally dumb. I am not able to stand again as a fit woman. So I'll personally, my motto is most probably the women go into the gym, and as a personal trainer, I give them a total particular diet, particular chart for program, and I उनको जितना आप फीमेल्स को जितना मोटिवेट करके आप उनको जिम में एज ए फिटनेस कोच आप उनको रख सकते हो, डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टली फीमेल्स करती हैं. और एज ए फिटनेस कोच मैं यही बोलूंगी कि जस्ट फोकस ऑन प्रोसेस, नॉट ऑन रिजल्ट. इट्स माय पर्सनल मोटो कि जस्ट आप अपने रिजल्ट्स में मत देखिए, फोकस ऑन योर हेल्थ ऑल्सो फर्स्ट. सो as a fitness coach, I am saying कि women जो है, not in a women, if I am saying कि men also, women also, child also. So take more, at least 2 or 3 hours spent on yourself. Just take a yoga or meditation, strength workout, crossfit out, as according to your body, as according to your situation as well also. So some females are that side effect after the born baby and before baby, after marriage, lot of things, and most probably that younger girls from the just suffering from the PCOD problem also. So that's early age they started from the gym. And I motivate lot of girls. I start from the schools girls also. I give them training also. So if you are going like, अगर आप फिटनेस की तरफ अगर आप अपना रुझान रखते हैं, तो आप डेफिनेटली डिजीज फ्री तो होंगे ही होंगे. वो तो आपको सोच के ही रखना है कि आप डिजीज फ्री हो गए हो. अगर इफ यू आर सेइंग कि आई डिसाइडेड आई एम गोइंग द जिम, आई एम डिसाइडेड आई एम गोइंग इन द फील्ड, आई एम डिसाइडेड आई पार्टिसिपेट द स्कूल गेम्स, कॉलेज गेम्स एंड अदर गेम्स, तो आप डिजीज फ्री हो. इट मीन्स दैट्स यू कम हियर. सो आपको मोटिवेशनल, इफ आई एम सेइंग कि आपको सेल्फ मोटिवेशन तो रखना ही रखना है पहली चीज से. उसके बाद आपको अपना सेल्फ डिसिप्लिन रखना है. डिसिप्लिन के साथ साथ आपको आपके जो भी आपके कोच हैं, आपके मेंटर्स हैं, आपके पर्सनल, आप किस स्पोर्ट्स में हैं, तो आपको उसका पूरा डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो करना है, अपने रूटीन को फॉलो करना है. और आफ्टर ऑल दिस थिंग, देन यू डेफिनेटली गेट अ सक्सेस इन योर लाइफ एज इन फिटनेस फील्ड. So that's true.
everything starts from us, whether it is knowledge, whether it's discipline, whether it is our reality. So whatever is there, we have it within us. Even our happiness and our strength, everything lies within us. And I Right. believe that every obstacle makes us realize our inner strength. And when we overcome these obstacles, there is only glory. And also, the process is more beautiful than the final destination. And you have reminded that us today. Thank you so much for sharing your Thank experience you. Thank you. of our country, and you've been so inspiring. And we would like to just give you more blessings for your future. So thank you so much for Thank joining. you so much. Thank you. Thank you, Malshri. Thank you so much. Thank you. And thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you.